Hi, today we will study about integers for class 7. Properties of addition and subtraction of integer. Closure under addition. We have learned that sum of two whole numbers is again a whole number. For example, 17 plus 24 is equal to 41, which is again a whole number. We know that this property is known as the closure property for the addition of whole numbers. Let us see whether this property is true for integers or not. A statement like this 17 plus 23, both are integer and their sum is also integer. So result is an integer. 19 plus bracket minus 25 is equal to minus 6, which is also an integer. Since addition of integer which gives integer, we say that integers are closed under addition. In general, for any two integer a and b, a plus b is an integer. Closure under subtraction, there are some given statement and observation. 7 minus 9 is equal to minus 22 and their difference is integer. Minus 8 minus bracket minus 14 is equal to 6 and their difference is also integer. So we can see that integers are closed under subtraction. Thus if a and b are two integers, then a minus b is also an integer. So we can say that whole number satisfies the closure property. Commutative property, we know that 3 plus 5 is equal to 5 plus 3 is equal to 8. That is the whole numbers and it can be added in any order. In other words, addition is commutative for whole numbers. Now we will try this in the case of integer. We have 5 plus bracket minus 6 is equal to minus 1 and minus 6 plus 5 is equal to minus 1. So 5 plus bracket minus 6 is equal to bracket minus 6 plus 5. So we can say that addition is commutative for integers. In general, for any two integers a and b, we can say a plus b is equal to b plus a. आपने जैसे कि पहले भी पढ़ा होगा कि दो होल नंबर्स का सम होल नंबर होता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 17 प्लस 24, इसका सम आता है 41, वो भी एक होल नंबर है. तो हम भी एक प्रॉपर्टी जानते हैं यहाँ पर, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए होल नंबर के केस में. फिर हम ये प्रॉपर्टी ये देखेंगे कि इंटीजर के केस में अप्लाई होती है कि नहीं. जैसे यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है और ऑब्जर्वेशन. जैसे यहाँ पे है 17 प्लस 23, दोनों इंटीजर है और इनका सम आता है 40. ये भी एक इंटीजर है, तो इस केस में क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के केस में इंटीजर में अप्लाई होगी. फिर यहाँ पर इसे हम इस टाइप से भी कह सकते हैं, फॉर एनी टू इंटीजर ए एंड बी, ए प्लस बी इज एन इंटीजर, मतलब ए और बी का सम भी इंटीजर होगा. क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट और ऑब्जर्वेशन दी गई है. जैसे यहाँ पर मैंने 7 माइनस 9 किया, फिर इनका डिफरेंस आया -2. दोनों अपने आप में इंटीजर है और इनका डिफरेंस भी इंटीजर है. तो फिर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोज्ड है. फिर वैसे ही ए और बी इंटीजर है, तो फिर ए माइनस बी करें तो इनका डिफरेंस भी इंटीजर आएगा. फिर हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हम जैसे कि जानते हैं 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, मतलब दोनों का सम 8 आएगा. फिर यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि होल नंबर्स किसी भी ऑर्डर में ऐड करे जाते हैं. और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि एडिशन होल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव है. अब हम ये चीज इंटीजर के केस में ट्राई करते हैं. 5 प्लस ब्रैकेट माइनस 6, दोनों नंबर्स इंटीजर है और इनका सम आता है -1. फिर हम इनका ऑर्डर चेंज करते हैं, मतलब ब्रैकेट -6 प्लस 5, इसका भी आंसर -1 आता है. तो फिर ये कम्यूटेटिव है, मतलब कि इंटीजर भी एडिशन केस में कम्यूटेटिव है. फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a. We know that subtraction is not commutative for whole numbers. Now we will try that is it commutative for integers. Consider the integers 5 and bracket -3. Is 5 minus bracket -3 the same as the bracket -3 minus 5? No, because 5 minus bracket -3 is equal to 5 plus 3 is equal to 8 and bracket -3 minus 5 is equal to -3 minus 5 is equal to -8. We conclude that subtraction is not commutative for integers. Associative property. Observe the following examples. Consider the integer -3, -2 and -5. Look at bracket -5 plus bracket -3 plus bracket -2 and their interchange order which seems like this. In first sum, -3 and -2 are grouped together and in the second, -5 and -3 are grouped together. We will check whether we get different results. In both the cases we get 3. That is which you can see here like this. So addition is associative for integer. In general, for any integers a, b and c,
So we can say that a plus bracket b plus c is equal to a plus b bracket plus c. Additive identity. When we add 0 to any whole number, we get the same whole number. 0 is an additive identity for whole numbers. Now we will try, is it an additive identity again for integers also? There are some given statement and observation. Bracket minus 8 plus 0 is equal to minus 8. So 0 is an additive identity for integer, because if we add 0 to any integer, then the sum will appear same as the number in which we try to add 0. Like this, if we add 0 to a, then its answer will be a only. हम जैसे कि जानते हैं कि सब्ट्रैक्शन होल नंबर से केस में कम्यूटेटिव नहीं है, वैसे ही हम ये ट्राई करेंगे यहाँ पे कि इंटीजर के केस में ये कम्यूटेटिव है कि नहीं। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ इंटीजर्स को कंसीडर करते हैं, जैसे 5 और -3, और क्या यहाँ पे 5 माइनस ब्रैकेट -3 के मतलब 5 माइनस ब्रैकेट -3 जो है -3 -5 के सेम है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हम इसको सब्ट्रैक्ट करें पहले तो कुछ ये ऐसे बन जाएगा। जैसे कि आप जानते हो कि माइनस माइनस प्लस, मतलब कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो अंदर के जितने भी साइन है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, और अंदर यहाँ पे इस वक्त माइनस है तो ये प्लस में बदल जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव का हो जाएगा। फिर यहाँ पे आंसर आता है 8। फिर यहाँ पे हम -3 और -5 को ट्राई करते हैं, मतलब -3 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है -8, क्योंकि ये माइनस में और ये सेम साइन आपस में यहाँ पे ऐड होते हैं, मतलब एक टाइप से ऐसे समझिए माइनस माइनस प्लस। फिर यहाँ पे -8 आ गया है। फिर यहाँ पे हम ये कंक्लूड कर देते हैं कि सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है इंटीजर के केस में। फिर यहाँ पे आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं और यहाँ पे हम कुछ इंटीजर्स को कंसीडर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे एक इक्वेशन जैसे हमने बना ली है, मतलब कि इनको ऐड किया है इन तीनों इंटीजर्स को, फिर इनका यहाँ पे ऑर्डर इंटरचेंज कर दिया है। फिर पहले सम में -3 और -2 को एक साथ ग्रुप किया है, जैसे ये देख सकते हैं हम यहाँ पे, और दूसरे में -5 और -3 को ग्रुप किया गया है। फिर अब हम ये चेक करेंगे कि इनके क्या डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। हमें दोनों केस में आंसर -10 मिला, तो हम ये कह सकते हैं कि एडिशन एसोसिएटिव है इंटीजर के केस में इन जनरल फॉर इन, मतलब कि जैसे कि ए बी और सी है, तो फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। एडिटिव आइडेंटिटी, जब हम 0 को किसी भी होल नंबर में ऐड करते हैं तो हमें सेम होल नंबर मिल जाता है, इसलिए 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी है होल नंबर्स के लिए। लेकिन अब हम ये ट्राई करेंगे कि ये एडिटिव आइडेंटिटी इंटीजर में है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है और यहाँ पे एक है इंटीजर -8, इसमें हमने 0 को ऐड किया तो हमारा तब भी आंसर -8 आया। फिर यहाँ पे 0 को -37 में ऐड किया तब भी हमारा आंसर -37 आया। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है इंटीजर के लिए भी। फिर यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं a plus 0 is equal to a only, और we can say that 0 plus a will be also a only. Multiplication of a positive and a negative integer. We know that multiplication of whole numbers is repeated addition. For example, 5 plus 5 is equal to 3 multiplied by 5 is equal to 15. Therefore, as you can see in this equation, -5 plus bracket -5 plus bracket -5 is equal to 3 multiplied by bracket -5. Therefore, 3 into -5 is equal to -15. We thus find that while multiplying a positive integer and a negative integer, we multiply them as whole numbers and put a minus sign before the product. We thus get a negative integer. In general, for any two positive integer a and b, we can say that a multiplied by bracket minus b is equal to bracket minus a into b is equal to minus bracket a into b. Multiplication of two negative integers. Observe the following statements like this: 3 multiplied by 4 is equal to 12. 3 multiplied by -4 is equal to -12. -3 into 3 is equal to -9 is equal to -12 minus bracket -3. -3 into 2 is equal to -6 is equal to -9 minus bracket -3. -3 multiplied by 0 is equal to 0 is equal to -3 minus bracket -3. -3 into -1 is equal to 0 0 minus bracket -3 is equal to 0 plus 3 is equal to 3. And there are also some more equations like this. So observing these products, we can say that the products of two negative integers is a positive integer. We multiply the two negative integers as whole numbers and put the positive sign before the product. Thus we have
-10 into -12 is equal to 120 is equal to 120. Similarly, -15 into -6 is equal to 90. In general, for any two positive integers a and b, -a into -b is equal to a into b. मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर, जैसे कि हम जानते हैं कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एक रिपीटेड एडिशन कहलाता है। जैसे कि 5 को हमने 3 बार ऐड किया तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5 भी कहलाता है, जिनसे हमारा आंसर आएगा 15। फिर यहाँ पर भी और भी इक्वेशन दी गई है। फिर यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय, जैसे कि यहाँ पे हमने 3 बार -5 को ऐड किया है, फिर ये 3 इंटू -5 भी हम इसे कह सकते हैं, लेकिन दोनों में हमारा आंसर -15 आएगा। फिर यहाँ पर हमने ये भी देखा पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को, मतलब कि इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इस केस में हम प्रोडक्ट से पहले उसे माइनस साइन पुट कर देते हैं जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं। फिर तब हमारा आंसर नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे दो प्रोडक्ट की इक्वेशन दी गई है, जैसे a इंटू माइनस बी, या फिर इसे हम -a इंटू बी भी कह सकते हैं। तब हम इसे कह सकते हैं माइनस ब्रैकेट a इंटू बी, मतलब a इंटू बी को मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें माइनस लगेगा। फिर यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशन दिख रही होगी, जैसे 3 इंटू -4, यहाँ पे हमारा आंसर -12 आ रहा है। फिर -3 इंटू 3 इज इक्वल टू -9 इज इक्वल टू -12 माइनस ब्रैकेट -3। फिर यहाँ पे आपने इन प्रोडक्ट्स को ऑब्जर्व करने के बाद ये देखा कि मतलब कि दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें इनका आंसर आया एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दो नेगेटिव इंटीजर को होल नंबर्स की तरह मल्टीप्लाई करने के बाद और उसे पॉजिटिव साइन पुट कर देते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो इसमें हमें एक नेगेटिव साइन पुट करना पड़ता है, लेकिन वही अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर को कर रहे हैं तो उसे पॉजिटिव साइन पुट करना पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे -10 इंटू -12, यहाँ पे 120 आया है, लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव का साइन भी लगा सकते हैं, मतलब +120 भी कर सकते हैं, या फिर इसे +90 भी। इसके लिए भी यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है, -a इंटू -b, a इंटू b के इक्वल होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन there are some given statement, -20 into -5 is equal to 100, and there are some given inference product is an integer, which means that the both numbers are integers and their product is also an integer. This gives us an idea that the product of two integers is again an integer. So we can say that integers are closed under multiplication. In general, a multiplied by b is an integer for all integers a and b. Commutativity of multiplication. Statement 1, 3 multiplied by -4 is equal to -12. Statement 2, -4 into 3 is equal to -12. The both statements are equal to each other. The above examples suggest that multiplication is commutative for integers. You can also try 5 more examples and verify it. In general, for any two integer a and b, a into b is equal to b into a. Multiplication by 0. We know that any whole number when multiplied by 0 gives 0. Observe the following products of negative integers and 0. These are obtained from the patterns done earlier. -3 into 0 is equal to 0, and 0 multiplied by -4 is equal to 0. This shows that the product of a negative integer and 0 is 0. In general, for any integer a multiplied by 0 is equal to 0 multiplied by a is equal to 0. Both have same answer 0. Multiplicative identity, we know that 1 is the multiplicative identity for whole numbers. Check that 1 is the multiplicative identity for all integers as well. Observe the following products of integer with 1. -3 multiplied by 1 is equal to -3. Properties of multiplication of integers, closer under multiplication. जैसे यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिख रही होंगी और इनका इन्फ्रेंस भी, कि यहाँ पे ये दो इंटीजर्स हैं, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, मतलब कि -20 और -5 को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर 100 आया। फिर इनका जो प्रोडक्ट है वो भी एक इंटीजर है। फिर यही काम हमने यहाँ पे भी किया, -15 इंटू 17, तब हमारा आंसर आया -255। ये हमें एक आइडिया देता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर जो है वो भी एक इंटीजर होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर मल्टीप्लिकेशन केस में क्लोज्ड होंगे। इन जनरल हम ये भी कह सकते हैं कि a मल्टीप्लाई बाय b का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी इंटीजर है, और a और b भी अपने आप में इंटीजर है।
कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे जैसे कुछ स्टेटमेंट दी गई है, जैसे स्टेटमेंट 1 में दिया गया है 3 इंटू -4, फिर हमारा आंसर आया है -12, फिर -4 इंटू 3, तब हमारा आंसर आया है -12। दोनों स्टेटमेंट में हमारा आंसर सेम आ रहा है, तो इसका इन्फ्रेंस हम ये कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट इक्वल हैं। यहाँ पे अब एग्जाम्पल हमें ये दिखाते हैं कि मल्टीप्लीकेशन जो है कम्यूटेटिव है इंटीजर के केस में। आप यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हैं और उन्हें वेरीफाई कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं ए को बी से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो बी मल्टीप्लाई बाय ए के बराबर होगा, मल्टीप्लीकेशन बाय 0। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी होल नंबर से हम 0 को मल्टीप्लाई करें तब हमारा आंसर 0 आता है। ये चीज आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मतलब अगर नेगेटिव प्रोडक्ट्स है वहां पर भी होता है। जैसे हमने -3 में 0 को मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर 0 आया। या फिर 0 में हमने -4 को मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तब भी हमारा आंसर 0 आया। तो ये चीज दिखाता है कि द प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड 0 इज 0, मतलब नेगेटिव नंबर में हम 0 को मल्टीप्लाई करें तब भी हमारा आंसर 0 ही आएगा। तो इसको ये भी कह सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, जिसे हम 0 मल्टीप्लाई बाय a भी कह सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे कि हम जानते हैं कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है होल नंबर्स के लिए। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इंटीजर्स के लिए है कि नहीं है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, हमने एक एग्जांपल ट्राई किया -3 इंटू 1, तब हमारा आंसर -3 आया। And 1 multiplied by 5 is equal to 5. This shows that 1 is the multiplicative identity for integers also. In general, for any integer we have a multiplied by 1 is equal to 1 multiplied by a. Then the both equation have the same answer a. 0 is the additive identity, whereas 1 is the multiplicative identity for integer. We get additive identity for an integer when we multiply -1 to a. That is a multiplied by -1 is equal to -1 multiplied by a both have same answer -a, but we can't say that 1 as a multiplicative identity. जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है 1 multiplied by 5, इसमें हमारा आंसर 5 आया है। तो ये यहाँ पर ये चीज दिखाता है कि 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इंटीजर्स के लिए भी है। फिर इन जनरल हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि a मल्टीप्लाई बाय 1 करें या फिर 1 मल्टीप्लाई बाय a करें, दोनों में हमारा आंसर a आएगा। 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं और 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इंटीजर्स के लिए। फिर यहाँ पे एक एडिटिव इनवर्स होता है जब हम -1 को मल्टीप्लाई करते हैं a से, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि -1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक माय एक्सप्लेनेशन। रेस्ट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट पार्ट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।